Okay, students. So now we are starting with the new chapter. This is chapter number 15, fiscal policy. Again, this is coming into your third module only. So what are we going to study into this point, this chapter? So what is the meaning of fiscal policy? What are the objectives of fiscal policy? Then sometime government is adopting the cyclical fiscal policy, or we can say discretionary fiscal policy. Okay, so now we're going to study about fiscal policy. What is the meaning of fiscal policy? So everybody knows, as I already told you, that the fiscal policy, it means it is a government policy. Okay, so government is basically planning for their revenue and the expenditure. In short, we can say budget. Okay, so when they are taking decision on their budget, so for this purpose, like they need to spend money on the public, they need to get the revenue from the public. तो उसके बारे में जो भी प्लानिंग किया जाता है उससे रिलेटेड वॉट एवर पॉलिसी इज बीइंग फॉर्म, that policy is considered as fiscal policy. Okay, so we're going to see in a textbook what exactly the meaning is given, but general meaning क्या है that I already told you. Fiscal policy अगर कोई पूछेगा what do you mean by the fiscal policy, so you have to say that the fiscal policy is the policy which is prepared by the government. Okay, here the government will going to plan for its budget, like how much would be the public expenditure and how much would be the public revenue and how they will going to do it. Okay, so that all decision is being taken into the fiscal policy. Okay, so fiscal policy is the use of government spending and taxation to influence the economy, to influence the economy. When the government decide on the goods and services it purchases, the transfer payment it distributes, or the taxes it collects, it is engaging in fiscal policy. देखो fiscal policy में क्या आता है, sometimes government even they are purchasing the goods and services, कभी कभार वो ट्रांसफर पेमेंट करते हैं वेलफेयर के लिए, कभी कभार वो लोग टैक्सेस कलेक्ट करते हैं. So that all things will be coming into your fiscal policy. The primary economic impact of any change in the government budget is felt by a particular group. Example, a tax cut for families with children raises their disposable income. Discussion of fiscal policy, however, generally focus on the effect of changes in the government budget on the overall economy. Although changes in taxes or spending that are revenue neutral may be taken as the fiscal policy and may affect the aggregate level of output by changing the incentive that firms or the individual face. The term fiscal policy is usually used to describe the effect on the aggregate economy on of the overall level of spending and taxation, and more particularly the gap between them. So what they are trying to say here, that suppose if you have planned कि नहीं इतना output होना चाहिए, so that through that output you may automatically going to get the higher taxes, मतलब revenue मिल जाएगा आपको. ठीक है, so that all things will be coming into the fiscal policy. So overall whatever budget the government is planning, and through that whatever the income is being earned, और जो भी पैसा खर्च किया जाता है, so that all things will be coming into the fiscal policy. Fiscal policy is said to be tight or contractionary when revenue is higher than the spending. Okay, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कभी कहा जाता है कि ये टाइट फिजिकल पॉलिसी है कि जहाँ पे गवर्नमेंट को रिवेन्यू कम मिलता है लेकिन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा रहता है. So that is called as your sorry, when revenue is higher than the spending, मतलब यहाँ पे revenue ज्यादा एक्सपेंडिचर कम है, so it is called as tight, or we can say the contractionary fiscal policy. एक मिनट थोड़ा सा मैंने zoom कर लेती हूँ इसको, वन आएंगे difficult. हाँ, and
Okay, and loose or expansionary when spending is higher than the revenue. The budget is in deficit. Often, the focus is not on the level of deficit, but on the changes in the deficit. Thus, a reduction of the deficit from rupees 200 billion to rupees 100 billion is said to be contractionary fiscal policy, even though the budget is still in the deficit. So, what they are trying to say here that the government will decide कि ये साल में हमें मतलब किस वे से प्लानिंग करना है. तो सम टाइम इफ दे रियली जैसे जैसे फॉर एग्जांपल नाउ पैंडेमिक इज देयर, सो यहाँ पे सिचुएशन क्या होना चाहिए, द गवर्नमेंट स्पेंडिंग शुड बी मोर. ठीक है. और जब गवर्नमेंट का स्पेंडिंग ज्यादा रहता है एज कंपेयर विद द रेवेन्यू, सो दैट पॉलिसी इज कॉल्ड एज योर व्हाट वी कैन से लिबरल पॉलिसी. लिबरल पॉलिसी मतलब क्या होता है कि जैसे टाइट है और एक कॉन्ट्रैक्शनरी है. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जब डेफिसिट में रहेगा तभी कॉन्ट्रैक्शनरी बोलेंगे. ठीक है. तो मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट ने पैसा ज्यादा करना चाहिए, खर्चा करना चाहिए पब्लिक के ऊपर. तो ये सब कब डिसाइड होता है कि दिस ऑल विल बी डिसाइड अपॉन द सिचुएशन कि इकोनॉमी में क्या सिचुएशन चाहिए. तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि मुझे टाइट फिजिकल पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए या फिर मुझे कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए. तो टाइट में क्या रहेगा कि गवर्नमेंट ज्यादा पैसा खर्च नहीं करेगा पब्लिक के ऊपर. वो बोलेगा कि नहीं अभी मतलब पब्लिक से लाइक थ्रू द टैक्सेस एंड ऑल दे विल गोइंग टू अर्न द मनी. ओके. तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज्यादा हो सकता है, वहाँ पे डेफिसिट नहीं आएगा मतलब. बट लेकिन एक पॉइंट ऐसा रहता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है लाइक कंपेयर विद द रेवेन्यू. जितना रेवेन्यू वो प्लान करे कि नहीं इतना रेवेन्यू मुझे आएगा, लेकिन उससे ज्यादा भी एक्सपेंडिचर अगर हो जाएगा तो चलेगा. why it is so? Because it is the need of the economy. तो उसके अकॉर्डिंग भी वहाँ पे डिसीजन लिया जाता है. सो दैट इज कॉल्ड एज योर कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी. उसको थोड़ा सा लिबरल और वी कैन से द कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट अडॉप्ट करता है. नाउ द डेफिनेशन. In formal terms, fiscal policy involves the government changing the levels of taxation and the government spending in order to influence aggregate demand and the level of economic activity, where aggregate demand is the total level of planned expenditure in an economy. So AD is equal to C plus I plus G plus X minus A. C plus I plus G X plus X minus A. Expansionary fiscal policy involves increasing aggregate demand. Therefore, the government will increase spending or cut taxes. Lower taxes will increase the consumer spending because they have more disposable income. This will lead to this will lead to the government budget deficit and the government will need to increase borrowing. See what they are saying here, ये ध्यान में रखो आप, expansionary fiscal policy. ठीक है. एक्सपांशनरी फिजिकल पॉलिसी जब रहता है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है. कैसे क्या एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा? बिकॉज एक्सपांशनरी फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट वहां पे ज्यादा पैसा स्पेंड करता है. अभी आप बोलेगे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट स्पेंड करेगा तो उससे एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ेगा? तो व्हाट द गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या होता है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग इट मींस दे आर स्पेंडिंग ऑन द पब्लिक ओनली. उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है. तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जब इंक्रीज होता है मतलब गवर्नमेंट एग्जैक्टली क्या करेगा, गवर्नमेंट विल ट्राई टू गिव मनी टू द पब्लिक. ओके. तो किस फॉर्म में वो पैसा देगा? गवर्नमेंट पैसा देगा कि लोगों का सैलरीज बढ़ा देगा, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि 7 पे कमीशन आएगा आता है, देन अगेन नेक्स्ट 8 पे कमीशन आएगा. तो व्हेन द पे कमीशन इज कमिंग एट दैट टाइम गवर्नमेंट का स्पेंडिंग बढ़ जाता है और लोगों का सैलरी इंक्रीज हो जाता है. तो लोगों के पास वहां पे इनकम रहेगा. ओके. Then again, government will going to increase the amount of transfer of payment. ट्रांसफर ऑफ पेमेंट का अमाउंट मतलब क्या कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का अमाउंट बढ़ा देगा. देन अगेन पेंशन का अमाउंट बढ़ा देगा. दिस वे मतलब जो भी वेलफेयर स्कीम है उसके थ्रू जो भी इनकम आएगा वो वहाँ पे बढ़ा देगा. जो इनकम मिलेगा पब्लिक को वो वहाँ पे इंक्रीज कर देगा. तो ट्रांसफर पेमेंट वहाँ पे रहेगा. एक्सपांशन फिजिकल पॉलिसी में क्या रहता है, गवर्नमेंट ट्राई करेगा कि लोगों के पास पैसा रहे. ओके. क्यों? बिकॉज अगर लोगों के पास पैसा रहेगा देन ओनली द पीपल विल गोइंग टू डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, अदरवाइज दे विल नॉट गोइंग टू डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. तो लोगों के पास पैसा रहे इसके लिए वो और एक चीज क्या करेगा, टैक्सेस का जो रेट रहेगा वो भी थोड़ा वो कम ही रखेगा. ओके. टैक्स कटिंग का रेट वहाँ पे ज्यादा नहीं रहेगा. So this way, in the expansionary fiscal policy, the government will going to give the government expenditure will be more. गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर वहाँ पे ज्यादा रहेगा एज कंपेयर विद द रेवेन्यू.
and as the people will going to get the money in their hand, and because of that the demand for goods and services will going to increase here. अभी नेक्स्ट है कि डिफ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी, उसको कहा जाता है टाइट फिस्कल पॉलिसी। तो टाइट फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड कम होगा। वो क्यों कम होगा, बिकॉज टाइट फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट विल नॉट गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द पब्लिक। गवर्नमेंट क्या करेगा, जो वो पहले स्पेंड करता था ज्यादा, अभी वो कम कर देगा, ठीक है। और टैक्सेस का रेट वहां पे बढ़ा के रखेगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैक्सेस का रेट बढ़ा देगा, खुद एक्सपेंडिचर कम करेगा पब्लिक के ऊपर। इट मीन्स द गवर्नमेंट विल गोइंग टू गेट द लॉट ऑफ रेवेन्यू एज कंपेयर विद द एक्सपेंडिचर। तो उनके पास ज्यादा पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास, और पब्लिक के पास पैसा नहीं रहेगा, बिकॉज वहां पे टाइट फिस्कल पॉलिसी को अडॉप्ट किया है, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी। और टाइट फिस्कल पॉलिसी को अडॉप्ट करने की वजह से क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू रहेगा, लेकिन लोगों के पास रेवेन्यू ज्यादा नहीं रहेगा, ओके। और बिकॉज ऑफ दिस द एग्रीगेट डिमांड विल गोइंग टू डिक्रीज हियर, ओके। So students, see, I have explained you two kind of fiscal policy which government is adopting. One is the expansionary fiscal policy, that is called as the loose fiscal policy. Another one is the deflationary, so that is called as your tight fiscal policy. एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, डिफ्लेशनरी और विकास टाइट फिस्कल पॉलिसी में एग्रीगेट डिमांड कम होता है। तो अभी एग्रीगेट डिमांड कम होगा, ज्यादा होगा, दिस ऑल विल बी डिपेंड लाइक हाउ द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मनी ऑन द पब्लिक। एक्सपांशनरी में क्या होता है कि गवर्नमेंट ज्यादा पैसा खर्च करता है पब्लिक के ऊपर, इसके लिए पब्लिक के पास पैसा आता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कैन डिमांड द गुड्स एंड सर्विसेज। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द डिफ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी, तो यहाँ पे गवर्नमेंट पब्लिक स्पेंडिंग कम करेगा और टैक्सेस का रेट बढ़ा के रखेगा। टैक्सेस का रेट बढ़ाने की वजह से पब्लिक के पास पैसा कम रहेगा, इन हैंड उनके हाथ में पैसा कम आएगा फॉर द एक्सपेंडिचर पर्पज, एंड बिकॉज ऑफ दिस the aggregate demand will going to fall here, okay। So this is what the expansionary fiscal policy and the deflationary fiscal policy, what I am telling you। जब इमरजेंसी सिचुएशन है इकोनॉमी में, जहाँ पे जरूरत है दैट इकोनॉमी नीड्स टू गेट द बूस्ट, मतलब वहाँ पे इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज तभी इंक्रीज होना चाहिए, देन ओनली द इकोनॉमिक सिचुएशन विल गोइंग टू इंक्रीज। तो व्हाट यू सजेस्ट स्टूडेंट, गवर्नमेंट कौन सा पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए, एक्सपांशनरी अडॉप्ट करना चाहिए या फिर डिफ्लेशनरी पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए, क्या लगता है आप लोगों को? अगर इकोनॉमी का सिचुएशन एक्सपेंशनरी मैम। यस वेरी गुड, अगर इकोनॉमी का सिचुएशन अच्छा नहीं है तो एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट ने पब्लिक के ऊपर पैसा खर्च करना चाहिए, पब्लिक को पैसा देना चाहिए किसी फॉर्म में, एंड थ्रू दैट इफ द पब्लिक विल गोइंग टू हैव द मनी देन ओनली दे विल गोइंग टू डिमांड। और मैंने हमेशा बोला है कि जब डिमांड वहाँ इकोनॉमी में रहता है, अगर डिमांड ही नहीं रहेगा तो इकोनॉमी का सिचुएशन कभी इम्प्रूव नहीं हो सकता है, बिकॉज व्हेन वी आर डिमांडिंग द गुड्स एंड सर्विसेज then only the production will going to happen. When the production will going to happen, then only the income with the producer will be there, and as he needs to have the more production, so he needs to employ many labor, and therefore the employment opportunity will going to increase, and through the employment opportunity the people will going to get the income। तो जो बेसिक रहता है किसी भी इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट के लिए, जो बेसिक चाहिए रहता है, इट इज अबाउट द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन उसके अंदर भी और एक बेसिक है, अगर हमें इकोनॉमी में डिमांड चाहिए तो लोगों का कंजम्पशन पैटर्न भी वहां पे इंक्रीज होना चाहिए। मतलब लोगों को वो कंजम्पशन करने के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए कि यस आई नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ अ कमोडिटी। सो लोगों में वो कंजम्पशन हैबिट होना चाहिए। जो कंट्री में, जो इकोनॉमी में कंजम्पशन हैबिट अगर कम रहेगा तो उस इकोनॉमी में डिमांड नहीं बढ़ सकता है, ओके। तो हमारा जो साइकोलॉजी है, हमारा जो बिहेवियर है, जो हमारा कंजम्पशन पैटर्न है एज अ पब्लिक, दैट विल गोइंग टू अफेक्ट ऑन द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो पहली बात है कि लोगों का कंजम्पशन पैटर्न वहाँ पे अच्छा रहेगा तो ही डिमांड रहेगा, ओके। और कंजम्पशन पैटर्न अच्छा रहेगा तब बोलेंगे मैम, मतलब people all the people should not miser, मतलब सब लोग कंजूस नहीं होने चाहिए वहाँ पे। पैसा सेविंग भी करना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन सेविंग बैंक में करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इन्वेस्टमेंट शुड हैपन। आप लोग अगर कंजूस हो तो इन्वेस्टमेंट करो, तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, तो कोई प्रोडक्टिव चीजों में। तो वो अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं देन ओनली द पीपल विल गोइंग टू गेट द मनी, और आपके पास थ्रू द इन्वेस्टमेंट जितना ज्यादा पैसा आएगा
उसके अकॉर्डिंग आपका कंजम्पशन पैटर्न भी थोड़ा बहुत परसेंटेज का चेंज होता रहता है. तो द कंजम्पशन इज द बेसिक वन एंड डिमांड. डिमांड हम लोग डायरेक्ट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनी इकोनॉमी. ओके. नो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी. तो ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, मतलब क्यों फिस्कल पॉलिसी बनाया जाता है, उससे गवर्नमेंट को क्या फायदा है, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी. See, the objective of fiscal policy tend to differ between the developed and the developing country. ये ध्यान में रखो. हर एक फिस्कल पॉलिसी, हर एक इकोनॉमी का फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव अलग अलग रहता है और ये किसके ऊपर बेसिस रहता है, whether the country, whether the economy or the country is coming into the developed country or the developing economy. Okay. In the case of developed countries, the role of fiscal policy is generally to maintain full employment and stabilize the growth. By contrast, in developing, okay, stabilize the growth. By contrast, in developing countries, fiscal policy may be used to create an environment for rapid economic growth. Accordingly, the following are the objectives of fiscal policy. देखो उन्होंने कहा है कि डेवलप कंट्री के लिए अलग ऑब्जेक्टिव रहेगा गवर्नमेंट का पॉलिसी बनाते वक्त, और डेवलपिंग कंट्री के लिए अलग ऑब्जेक्टिव रहेगा. ठीक है. तो डेवलप कंट्री के लिए क्या रहेगा, बिकॉज दैट कंट्री इज ऑलरेडी डेवलप, सो वहां पे ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब whatever resources are available that has been fully employed and therefore that country is into the full developed situation. तो उस सिचुएशन को उनको कंटिन्यू रखना है वहां पे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इकोनॉमिक का सिचुएशन डाउन होता जाए करके, तो ये भी बहुत बड़ा टास्क रहता है. इफ यू से कि नहीं दैट ओके इंडिया इज कमिंग इनटू द डेवलप इकोनॉमी, बस यही सुन के खुश नहीं होने का. वो डेवलप का जो पार्ट है वो वहां पे कंटिन्यू रखना भी बहुत बड़ा टास्क रहता है. ओके. So whatever resources are available in the economy, that should be fully utilized, and the growth should be always there. The growth rate of that economy should not come down. This would be the objective of fiscal policy when they are coming into when they are planning for the developed country. And when it is for the developing, then obviously developing है करके उनका ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि हमें फुल मतलब जो ग्रोथ रेट है उसको इंक्रीज करना है, हमें कैसे भी करके डेवलप कंट्रीज के हमारी इकोनॉमी को डेवलप इकोनॉमी में लेके आना है. सो दैट वुड बी देयर पॉइंट ऑफ व्यू. तो वो आने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें नए नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए. मतलब वॉट एवर रिसोर्सेस आर अवेलेबल इन द एनवायरमेंट, उसको कैसे हम लोग यूटिलाइज करें उस बारे में प्लान होगा. देन अगेन कैसे हम लोग रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आए उस बारे में प्लानिंग होता है. सो दैट ऑल विल बी डिपेंड कि इकोनॉमी का सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग उनके ऑब्जेक्टिव्स भी अलग अलग रहते हैं. ओके. now we'll going to see the first one here, the first objective. और यहाँ पे I think उन्होंने दिया है from the point of view of developing country. अगर हम लोग डेवलपिंग कंट्री के लिए प्लानिंग करते हैं फिस्कल पॉलिसी का, तो वो कैसे होना चाहिए. तो द फर्स्ट वन हियर, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू इंक्रीज द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या है यहाँ पे, यस सेम थिंग, रिसोर्सेज वॉट एवर रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन द इकोनॉमी, वो हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे, उसके थ्रू हम कैसे कैपिटल को बढ़ा सकते हैं. जैसे कि अगर जो भी तुम्हारे पास नेचुरली अवेलेबल अगर वाटर है, तो वाटर को कैसे यूटिलाइज करें, जो मतलब यस वॉट एवर इज द डिमांड फॉर द पब्लिक फॉर द वाटर सोर्सेज, तो वो पूरा सेटिस्फाई करने के बाद में विच एवर इज द एक्सेस सोर्सेज एक्सेस वाटर, तो उसको हम लोग कैसे यूटिलाइज करें जहाँ से हमें इनकम मिल सकता है. ओके. so that way they should plan out when we are planning. तो उसके लिए क्या पैसा खर्चा करना पड़ेगा, कितना पैसा लगेगा, कोई कुछ मतलब कोई ना कुछ वहाँ पे प्रोजेक्ट लेके आएगा कि ओके दिस वे वी कैन प्लान फॉर दिस थिंग, कि हम वो वाटर्स को इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, इसके लिए वहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा. सो दैट वे somebody will going to come with the project, तो वो प्रोजेक्ट को सैंक्शन करना, अलाउ करना, so that will be the kind of a government expenditure only. okay. तो ऐसे मतलब रिसोर्सेज जो अवेलेबल है उसके ऊपर कैसे हम लोग काम करके पैसा खर्च करके उस रिसोर्सेज को हम लोग हमारे इकोनॉमी में रिवेन्यू जनरेट के लिए यूज कर सकते हैं या फिर कैपिटल के लिए यूज कर सकते हैं. तो दिस वुड बी देयर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखो, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सेकेंड वन ईयर, एक्सेलरेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. एक्सेलरेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या है यहाँ पे, यस हाउ द कंट्री विल गोइंग टू हैव द economic growth continuously, it should not be fluctuating one. So whatever resources are available in the economy, उसको कैसे यूज करके हम लोग कंट्री का इनकम बढ़ाते रहेंगे. ओके.
जैसे कंट्री का इनकम बढ़ेगा, सो दैट पार्ट वी आर कॉलिंग इट एज इंक्रीज इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर कंट्री का नेशनल इनकम नहीं बढ़ता है, सो इट मीन्स व्हाट हियर, दैट द इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट हैपनिंग। Okay, I'm not talking about the economic development, I'm only focusing on the economic growth. यहाँ पे economic growth मतलब जब growth की बात आते हैं, so it is all from the monetary point of view. Okay, so as per the monetary point of view, country's income should always increase, and when it will going to happen, when we are utilizing the resources, when we are making it available for the public. Okay, so उसके through ही हमें पैसा मिलने वाला है. So therefore their second objective is what, to have the accelerating economic growth that should be continuously increasing one. And then the balance growth क्यों कहा है उन्होंने, कि कभी कभार क्या होता है, जैसे हम लोगों ने अभी देखा, अब ठीक है ये इमरजेंसी सिचुएशन था, पैंडेमिक करके इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम हो गया था, लेकिन वैसे नहीं होना चाहिए। अगर हमारा लास्ट ईयर 6% का ग्रोथ था, तो ये साल भी 6% का ग्रोथ होना चाहिए, या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ओके, so this is what their point of view of the fiscal policy. So whenever they are deciding on this point of view, so they always try to have the balanced growth in the economy. And then the provision of economic and the social overhead. यहाँ पे प्रोविजन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ओवरहेड मतलब क्या रहता है, कि जो भी रिसोर्सेज है अवेलेबल, अभी जैसे कि वी कैन टॉक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे अच्छे से अवेलेबल करवा के देना चाहिए, सो दैट that infrastructure, as you all know, that it is very important, where whatever production we are having for the exporting and the importing things, it is really useful for us. ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है करके we cannot do this thing. This thing should not be said by the developing economy. So therefore they should focus on developing their infrastructural facility. Then again, in that one we can talk about the transport, then again the communication, दूसरे और रहते कि वाटर मैनेजमेंट वहाँ पे होना चाहिए, इरिगेशन प्रोजेक्ट वहाँ पे होने चाहिए, हेल्थ एंड एजुकेशन शुड ऑल्सो बी देयर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होना चाहिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होना चाहिए। ओके, तो उसको डेवलप करने के लिए, वो सेक्टर को डेवलप करने के लिए, विच एवर थिंग्स आर रिक्वायर्ड, वट एवर द इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड, दैट शुड बी देयर, द गवर्नमेंट शुड स्पेंड द मनी. Somewhat it will be helpful for the public also, even for the private sector also it could be helpful to have increase the investment. Okay, तो इसके लिए जो बाकी इम्पोर्ट साइड की चीजें रहती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, लोगों का मतलब education and health and education, why it is so important, because if in the economy the people will be very healthy and they are, if they are very much skilled, then वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी नया कंपनी आके इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी रहता है उस कंट्री में। बिकॉज अगर आप लोग बात करेंगे कि इंडिया में क्यों आते हैं लोग, मतलब वाई मेनी एमएनसीज आर देयर इन द इंडिया, द रीजन इज ओनली वन, लाइक वी आर हैविंग द हेल्दी पीपल। ऑब्वियसली मतलब अगर हम लोग हैप्पी लेवल का इंडेक्स देखेंगे, इकोनॉमिक का हैप्पी इंडेक्स भी रहता है यहाँ, मतलब कितने लोग हैप्पी है, तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया का बहुत पीछे वाला रैंक है, इंडिया इज नॉट कमिंग इनटू दैट पार्ट। बट स्टिल अगर अपने इकोनॉमी में हेल्दी पीपल अवेलेबल है, देन अगेन एजुकेटेड पीपल अवेलेबल है, और दूसरी बात क्या है कि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है करके लेबर फोर्स जो रहता है वो बहुत चीप रेट पे अवेलेबल है एज कम्पेयर विद द अदर कंट्री। एंड देयरफॉर द other countries companies are ready to invest into, or they are ready to start the MNC into our economy, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। Okay, तो इसके लिए हेल्थ, मतलब हेल्थ सेक्टर भी इम्प्रूव होना चाहिए, एजुकेशन सेक्टर भी इम्प्रूव होना चाहिए, वहाँ पे भी हमें अच्छे से मतलब प्रोडक्टिव चेंजेस करनी चाहिए वहाँ पे। दीज आर ऑल द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये सब कभी कौन प्लान करता है, ये सब गवर्नमेंट ही प्लान करेगा। So as government will going to decide on all those things, so obviously it will be coming into your fiscal policy only. Then the increasing employment opportunity, yes, this is very important one, employment opportunity बढ़ना चाहिए। उसके लिए मतलब industries, obviously growth of industry should be there. If it will going to happen, then only we can have the increase in employment opportunity. Then the social justice, that is reduction of inequalities of income and wealth. यहाँ पे गवर्नमेंट अगर कुछ प्लान कर सकता है सोशल जस्टिस के लिए, कि इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए, सो दैट वुड बी ओनली इन वन फॉर्म, कि जैसे कि पुअर है, पुअर पीपल है, रिच पीपल है, दोनों के बीच में जो बहुत ज्यादा गैप है उसको अगर कम करना है हमें,
देन ऑब्वियसली हमें यहाँ पे पुअर पीपल के लिए बहुत वेलफेयर फैसिलिटी ज़्यादा अवेलेबल करवा के देनी चाहिए. मतलब गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर मनी ऑन द पुअर पीपल, एंड देन अगेन अकॉर्डिंग टू द इनकम ओनली द टैक्सेस, द टैक्स कटिंग उनका जो रेट रहेगा दैट शुड हैपन. देन अगेन वेलफेयर फैसिलिटी इंक्रीज करना चाहिए. मतलब ऑब्वियसली पुअर पीपल के लिए वहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं कि राशन के लिए मतलब राशन कार्ड में भी जैसे आप लोगों ने मुझे बताया था कि ऑरेंज कार्ड, येलो कार्ड एंड व्हाइट कार्ड, वो भी इनकम के अकॉर्डिंग है. तो जिनका ऑरेंज कार्ड और येलो कार्ड रहेगा उनको थोड़ा ज्यादा फैसिलिटी रहता है. ओके. उसके बाद में देन व्हाट वी कैन से अदर वेलफेयर फैसिलिटी, जैसे अगर हम मतलब हाउसेस के लिए इंदिरा आवास योजना रहता है, तो वहाँ पे उसके थ्रू लोगों को रहने के लिए अच्छा घर वगैरह अवेलेबल करवा के देना. वाटर फैसिलिटी, सैनिटाइजेशन वहाँ पे ठीक से होना चाहिए उस एरिया में. सो दिस वे वी कैन इम्प्रूव देयर सिचुएशन ऑल्सो. ठीक है. लेकिन इंडिया के लिए ये क्यों नहीं हो पा रहा है अभी तक? वाई इट इज अ प्रॉब्लमेटिक? बिकॉज वी आर हैविंग ऑल दिस काइंड ऑफ अ पॉलिसी कि जहाँ पे ऐसे लोगों को रीडेवलपमेंट के थ्रू मतलब रिहेबिलिटेशन के थ्रू उनको अच्छा घर दिया जाएगा करके. दैट एवरीथिंग वी आर हैविंग, बट द प्रॉब्लम विद द इंडिया इज व्हाट, लाइक the many people, many matlab huge population is coming into that category, and spending the money on them it will be very very expensive. ठीक है. लेकिन और एक बात भी मैं आपको बता दूं कि चलो वो बात तो छोड़ा, पैसे की बात है कि गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, but there are many people who are not even taking the advantage of those things. They knew like this kind of a facilities are there, लेकिन वो कैसे प्रोसीड करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे डिमांड करना है, that thing people are not aware, or were not lack of, because of this kind of a lack of awareness they are not able to utilize all this kind of a facility. Okay. Now the next one here, price stability. Yes, price stable होना चाहिए, prices नहीं increase होने चाहिए. ये भी गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है. बिकॉज क्यों रहता है, जितना तुम्हारे इकोनॉमी में प्राइस फ्लक्चुएटिंग रहेगा ना, तो उतना ही तुम्हारे इकोनॉमी में कोई भी बाहर का कंट्री इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंफर्टेबल नहीं रहेगा. बिकॉज एज द प्राइजेस विल गोइंग टू फ्लक्चुएट मेनी टाइम. तो वहाँ पे क्या होता है कि फ्लक्चुएट मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि इन्फ्लेशन प्राइसेस अगर बहुत ज्यादा बढ़ते जाएंगे, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग, मतलब बेसिकली फॉर द एक्सपोर्ट एक्टिविटीज, एक्सपोर्ट कोई ज्यादा नहीं करेगा. क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज पीपल मे नॉट गोइंग टू लाइक दोज हु आर द इम्पोर्टर, दे मे नॉट गोइंग टू अफोर्ड वट एवर प्राइसेस वी आर चार्जिंग. so that way it will going to affect on the economy. अगर हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, then obviously we will not able to get the revenue also. अगर हमारे पास भले ही प्रोडक्शन ज्यादा रहेगा, एक्सेस प्रोडक्शन रहेगा, आफ्टर सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द पब्लिक, जो भी एक्सेस प्रोडक्शन रहेगा, अगर वो हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, तो वो हमारे लिए लॉस ही रहेगा. इसके लिए अगर किसी भी इकोनॉमी में प्राइस स्टेबल रहते हैं, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाता है अदर कंट्रीज का. नाउ द नेक्स्ट वन ईयर, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन. यस, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मतलब क्या कि प्राइस लेवल स्टेबल होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबल होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे स्टेबल होने चाहिए. ऐसे नहीं कि वो डिक्रीज होते जाए करके. इट शुड बी स्टेबल. So these are all the main objective of the government when they are deciding about the fiscal policy. So during those time they are thinking on this point of view also कि मतलब क्या क्या इकोनॉमी में होना चाहिए करके. Okay. So this is all about student for the fiscal policy meaning and the objectives of fiscal policy. In the next lecture we will going to study what exactly the contra cyclical fiscal policy and then the discretionary fiscal policy. हम लोग next lecture में पढ़ेंगे. Okay. Yes, ma'am. Okay, ma'am. I'm taking your attendance now, right? You see 1 to 10, I can see 1 2 3 8. इसके अलावा कोई नहीं ना. 1 2 3 8. रुफिया शेख, तब तक अपने आप को रिनेम करो बेटा. 1 2 3 8.
2, 3, 8. Okay. And then from 11 to 20, I can see only 13 roll number. 21 to 50, 21 to 30, 25, 26, 27, and then 29. From 31 to 40, 31, 32, 34, 36. Then 41 to 50, I can see here 43, 45, 46, 49. Then from 51 to 60, I can see here 51, 56, 57. Okay, then from 61 to 70, 61, 62, 66, 67, and then 71 to 80, I can see only 79. Okay, then 81 to 88, I can see roll number 82, 85, 87, 88. From roll number 91 to 100, I can see 92, 95, 97, 99. अभी 100 में से I can see the roll number here 102, then 105, 106, 107, 112. Okay, and रुफिया शेख का रोल नंबर क्या है? रुफिया का 87. Given. Okay, student. That's Ma'am, it. roll number 13. 13. Given. Roll number 13 has been given. Okay, shall I end the lecture, student? Okay. Yes. Okay. Yes, Bye. ma'am.